या अगर तुम्हें कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोग ने पढ़ा था, एसिड रेन कवर किया था ना। एसिड रेन में हमने एक चीज़ देखी थी, वहाँ पे दो तरह का ऑक्साइड्स था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे और सल्फर के ऑक्साइड्स थे। एंड in that section there was a ratio that has been asked many times in your NEET examination, that is 7:3 ratio between sulfuric acid and nitric acid, and I have told you the method to learn that ratio. Now after that I have also explained you what is wet deposition and what is dry deposition, isn't it? I have told you what is wet deposition and what is dry deposition, and it is all clear. So now I have not mentioned a single point, that I forgot to mention a single point, that the pH of acid rain is less than 5.6. Why I am saying so? Because in normal cases, uh, whenever there is a rainfall, the pH of that water is around 7, neutral pH. But due to acidity, the pH of the rainfall, the acidity will increase, and henceforth the pH will decline. Okay, so this was the thing that I forgot to mention. You have to memorize this 5.6. The trick is, what comes after 5 is 6, तो 5.6, ठीक है। एग्जाम में कभी भी 56 मत कर देना पीएच, ठीक है। पॉइंट लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है इधर। ओके, सो मैंने ये भी आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि acid rain cause all types of pollution. It could be water pollution, air pollution or soil pollution, right? So okay, and can you please explain me what is the difference between photochemical smog and London smog? फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है ना कि जैसे जो उसमें था ब्राउन स्मॉग था, SO2 के साथ PaNO3 बन रहा था। हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि लाइट और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में जो स्मॉग बनता है वो फॉर्म करता है एक तो पैन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनता है इसमें फोटोकेमिकल में, जो लॉस एंजलस वाला। और जो लंदन स्मॉग है उसमें लो टेम्परेचर पे होता है, और जैसे लाइट है वो एसेंशियल नहीं होती, इसमें लो टेम्परेचर कंपलसरी होता है। लाइट और सुबह कहाँ पे, लंदन में लाइट ना? हाँ लंदन में। लंदन में लाइक लाइट चाहिए? नहीं नहीं, उसमें नहीं चाहिए लाइट, हाँ, उसमें लो लंदन में रात को काम होता है, ठीक है। एंड लॉस एंजलिस में सुबह काम होता है। हाँ सो वेल डन। सो बेसिकली लंदन में SO2 की वजह से हो रहा था काम, ठीक है। एंड देन फोटोकेमिकल स्मॉग, देयर आर हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो फर्स्ट इज नाइट्रोजन, सेकंड इज सल्फर, बट ऐसा नहीं है कि ऐसे सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। दैट वाज जस्ट अ थ्योरेटिकल और हाइपोथेसिस। ओके, सो नाउ in the air pollution topic itself, we have to discuss a lot more things extra, right? And those extra things are, number first topic is greenhouse effect. So you can recall the sweet classes of your class 8 and class 9, where teacher used to say half an hour or 1 hour lecture about the greenhouses, or they may not be, they may not be, that can also be a probability, that can also be a case. But yeah, greenhouse effect is important, which our teacher used to skip. So you you must know this topic, what is greenhouse effect, because as an individual, as a as a sociologist, you must know this topic. Why I am saying so, you will relate. Okay, so now let's see. Suppose this is the troposphere, okay, and underneath the troposphere we have our pretty green, bluish green earth, right? Earth है, पाकिस्तान नहीं बनाया, अर्थ बनाया हूँ, ठीक है। ये जो बच्चे बोलते हैं ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान हो गया। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इन द ग्रीन हाउस? फर्स्ट, बिफोर एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस गैस, I will explain you what are the gases that can cause the greenhouse effect. That gases are, I will write it down. सबसे पहले CO2, then
मेंशन नहीं किया। ओके अरे okay, so this is a very good picture that I have cut and pasted from NCERT, some of beloved NCERT. So in this case देखो क्या दिख रहा है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट में 60% जो होता है CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस effect, and after CO2 there is methane, and after methane there is CFC, and there is a N2O gas. If being a very honest teacher, I can simply skip this topic, or I can simply मतलब give you data कि भैया what is this is the CO2 percentage, and all मतलब the respective the remaining duties yours how to mug this, how to mug those things. But being a noble teacher, being an extraordinary teacher, I can give you not mnemonic, I can give you a very good example on how to memorize this thing. Okay, so in the whole pie chart there are 4 gases, right? Please write those 4 gases. Number 1 is CO2, number 2nd is methane, number 3rd is CFC, and number 4th is N2O, that is nitrogenous oxides and other gases. Okay, so you have to how to learn those data, how to learn the percentage. First of all, we will concentrate on this thing. There are 2 percentage. Number 1 is 60%, number 2nd is 6%. 6 and 6 is common. Okay, तो माइनर वाला जो गैस है वो 6% है, मेजर गैस जो है वो 60% है. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 इज कॉमन. ठीक है, क्लियर है ये चीज. एंड आफ्टर दिस 2 more gases are there. First is methane and number 3rd is chlorofluorocarbon. Back to the class 11 topic, back to the class 11 days when सबसे पहले क्या आया था तुम्हारा? सबसे पहले तो अल्केन आया था ना. सबसे पहले तो अल्केन चैप्टर आया था. क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो अभी तक ऑर्गेनिक में आया भी नहीं होगा तुम्हारा, मे बी आ भी गया होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिकॉज देयर हैलोकार्बन. हैलोकार्बन 12th क्लास का पहला चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. हैलो अल्केन्स CH3Br CH3I लाइक दैट. तो वहीं पे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ते हैं. तो सबसे पहले क्या आता है? क्लास 11 आता है, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट मीथेन गैस. एंड बिफोर ऑर्गेनिक इटसेल्फ, इनऑर्गेनिक में भी तो आता है मीथेन CH4 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री. जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं वो बात अलग है, हमने पढ़ा ही नहीं. तो लेकिन सबसे पहले हम लोग मीथेन पढ़ते हैं. आफ्टर मीथेन वी आर मतलब जनरली ऑल द किड्स इन आवर Indian society they study about the haloalkanes or the chlorofluorocarbon. So the mnemonic is number 1 CO2 will come, that is the inorganic chemistry will come, class 11, and after that organic chemistry methane will come. Okay, that is the alkane chapter. And after alkane chapter when you go in class 12 you will study about the haloalkane. So this is the tarika that may help you. Okay, why I am wasting my precious 5 minutes time? Because this question has been asked more than 5 times in your NEET examination. This alone pie chart. They will ask you about the percentage, and they also try to confuse you between the gases. ठीक है, वो इधर और कोई गैस दे देंगे और तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये गैस क्या ग्रीन हाउस में था भी कि नहीं था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रटने वाला चीज़ को ध्यान में रख लिया. ठीक है, एक और डायग्राम हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे. देखो एक और डायग्राम देखो, इसी पाई चार्ट का ये डायग्राम पहले एनसीईआरटी में आता था. एक वो बना दिया. फिर ये आज के डेट में तुम्हारे जो रेस्पेक्टिव जो तुम एग्जाम देने जाती हो एलएन का, तो ये पूछते कि CO2 देखो 60% है. मेजॉरिटी जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस CO2 की वजह से होता है. एंड आफ्टर दैट क्या होता है? मीथेन है. मीथेन के बाद क्या है? CFC है. एंड क्या है? N2O है. तो इतना याद हो गया 60 and 6%. ठीक है, अब रिमेनिंग याद करना. रिमेनिंग इज 34%. तो तुम्हें याद करना पड़ेगा. तुम इतना अगर याद होगा तुम्हें मैच द फॉलोइंग तुम करके निकाल लोगे अपना आंसर. 20% एंड अराउंड 20%, दिस इज द 40%. ठीक है, क्योंकि देखो 4 गैस है, CO2 है, फिर मीथेन है, फिर CFC है, फिर तुम्हारा क्या है कौन सा आता है मतलब N2O आता है. ठीक है, इसका इस दोनों का याद हो गया. इस दोनों का लगभग बरोबर कर दो. तो ये दोनों अकेला जो है फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर ये अकेला 66% खा गया. लगभग 34%, यानी लगभग कितना बचा?
मतलब 40% लगभग बचा है, तो 20-20 कर देना, इक्वल कर देना, लेकिन CH3 थोड़ा कम होता है, ठीक है। नंबर सेकंड इज मीथेन, सो लाइक दैट यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो ये तो हो गया याद करने का बात, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेरी हाई पोटेंशियल क्वेश्चन है ये, जो पूछते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, ओके। नॉर्मल देखो ऐसा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट, because carbon dioxide we have studied in our previous classes that carbon dioxide is a part of atmosphere and its percentage is 0.003%, यानी 0.003% of carbon dioxide is present in our environment, but that percent of carbon dioxide is essential, that are not pollutant, because carbon dioxides are excreted or they are excreted out from our body, okay. So that much percentage of carbon dioxide is present in the atmosphere, but a high level of air pollutant, but a high level of carbon dioxide behave as a air pollutant, and in the majority of cases carbon dioxide will cause greenhouse effect. Greenhouse effect is something which can cause global warming, the term that you have heard in whenever your dad is watching TV, yeah, on Instagram, if you are following any sociologist, okay. Apart from all the things I can explain you, I will explain you, not I can explain you, yes definitely I can explain. तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना, CO2 हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और हम क्या कर रहे हैं इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़, हम बहुत सारा बायोमास को बर्न कर देते हैं, फ्यूल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, अपना घर का LPG जला रहे हैं, ऑटोमोबाइल चला रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री चला रहे हैं, बहुत सारा फैक्ट्री जला दे रहे हैं, तो लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर बीइंग रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड होता क्या है, ये मैंने अगर तुम्हारे सामने एक ट्रोपोस्फेयर का लेयर ले लिया और मैंने अर्थ ले लिया, तो होता क्या, अर्थ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। अभी होता क्या है ना, ऊपर में एक मियाँ प्रेजेंट है, मियाँ नहीं बोलेंगे, कट कर देंगे, ऊपर में क्या प्रेजेंट है, ऊपर में प्रेजेंट है सन, ठीक है। इस सन से क्या निकल रहा होता है, रेडिएशंस निकल रहा होता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई कैन टेल यू कि ये जो रेडिएशंस होती है ना, इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, दे कैन इजिली पेनिट्रेट योर ओजोन लेयर और योर ट्रोपोस्फेयर लेवल, और दे विल रीच योर अर्थ, your mine earth, mine as well. So these radiations reach the surface of the earth, and due to the albedo value they will get reflected again, okay. Heat entrapment will not be seen. What is heat entrapment, देखो होता क्या है, ये जो वेवलेंथ, ये जो रेडिएशंस आई ना, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी कि कम थी, हायर फ्रीक्वेंसी था कि हायर वेवलेंथ था, हायर फ्रीक्वेंसी था, बिकॉज दे हैव टू पेनिट्रेट द अर्थ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा रखना है, और मैंने तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी, और उतना कम क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तरीका भी बताया था विबग्योर को याद रखने का, जैसे जैसे आगे जाते जाती हो वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है, क्योंकि तुम लेंथ को बढ़ा रही हो, इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल देके मैंने बताया था। और वायलेट का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी जो रेडिएशंस होती है वो हाई फ्रीक्वेंसीज की होती है, एंड दैट रेडिएशंस कम टू अर्थ, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, जितना भी रेडिएशंस आया वो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। तो CO2 क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को अपने ट्रैप कर लेता है। मतलब क्या हुआ, देखो एक चीज़ समझना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन इज ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो अर्थ से टकरा गई, अपना एनर्जी डिलीवर कर चुके हैं, पत्ता को, जमीन को, इंसान को, एंड दे विल बी ऑफ हायर वेवलेंथ, ठीक है। तो दैट आउटगोइंग सोलर रेडिएशन इज ऑफ हायर वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ इनका बहुत ज़्यादा है, तो दे विल नॉट बी गेट पेनिट्रेटेड वेरी मच ईजिली, दे टुक टाइम, ठीक है। या वो क्या होगा, जैसे टकराएगा तो वैसे बार बार टकरा के अर्थ फिर ऐसे उनका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, बहुत सारे रेडिएशन तो अर्थ से बाहर जा भी नहीं पाता है। एंड बिकॉज ऑफ CO2 का लेयर, बिकॉज ऑफ द CO2 का शील्डिंग इफेक्ट, हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स। मार्स पे क्या है, मार्स पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब मार्स पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहाँ पे CO2 का कोई लेयर ही नहीं है। जब CO2 का लेयर ही नहीं है तो जितना भी सोलर रेडिएशन आया वो मार्स से टकराया और बाहर चला गया। मार्स का टेम्परेचर बहुत 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 कोल्ड है, कोई भी इंसान जम जाएगा। इसीलिए एलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट या एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन करेंगे
एटॉमिक बॉम्ब का, उसको अर्थ से मतलब नहीं है, उसको वो अर्थ से ऊपर उठ चुका है, ठीक है। तो वो क्या है कि मार्स पे जाके बॉम्ब एक्सप्लोजन करेगा, एटम बॉम्ब गिराएगा या हाइड्रोजन बॉम्ब गिराएगा। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन लाइक दैट। उससे क्या होगा, बहुत सारा हीट जनरेट होगा और CO2 प्रोड्यूस होगा। वो CO2 क्या करेगा, पूरे मार्स के अराउंड में एक लेयर बना लेगा, जिससे क्या होगा, जितना भी सोलर रेडिएशन है वो मार्स पे आएगा, लेकिन मार्स से बाहर जा नहीं पाएगा। तो जा नहीं पाएगा तो धीरे धीरे मार्स का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर विल बी रेनफॉल, एंड बिकॉज ऑफ रेनफॉल क्या होगा, बारिश गिरेगा, बारिश से क्या होगा, तुम्हारा जितने भी सीडलिंग्स है या जितना भी लोग है वो उधर से बनने लगेगा। तो इससे तुम क्या कर सकती हो, मार्स पे भी डाइवर्सिटी को बढ़ा सकती हो, और मार्स हमारा एस्केप प्लान हो सकता है। तो देखो हुआ यही था, अगर ये CO2 का लेयर हमारे अर्थ पे नहीं होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता हमारे अर्थ का टेम्परेचर। बट बिकॉज गॉड हैज गिफ्टेड अस this CO2 layer, not God has gifted, this has been explained in the evolution chapter, that how this CO2 layer is formed in our atmosphere. So that we will discuss in our evolution chapter, but that is not important at how CO2 layer is formed. But let us consider that CO2 layer has been formed around the earth. That CO2 layer will trap the solar radiations, and because of the entrapment of solar radiation, earth's temperature will tend to rise. If that CO2 layer is not present, if that CO2 layer is not present in the atmosphere, then the earth's temperature will be -18 degrees Celsius. That is not suitable for life to happen, for life to sustain. Okay, earth will convert it into an ice ball. ठीक है। अब हुआ क्या, हमारे जो इंसान है, ये हमारे जो जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज है, they tend to pollute the environment, and because of day to day life activities and biomass fuel consumption, more and more CO2 layer has been formed. देखो CO2 layer होना अच्छा है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, but due to increase in the CO2 excretion, or due to increase in the concentration of CO2 in our atmosphere, there has been a thick layer has been formed in our atmosphere, right? And because of that thick layer of CO2, more and more radiations will not be ejected out from our atmosphere, leading to an increase in the temperature of our earth. तुमने पढ़ा होगा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इस साल 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, हर साल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कहीं पे 50 डिग्री तापमान पहुंच गया, कहीं पे 60 डिग्री पहुंच गया। दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेना दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो देखो ड्यू बिकॉज ऑफ CO2 लेयर टेम्परेचर जो था वो किस पे मेंटेन था, 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड था, लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द CO2 कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्थ टेम्परेचर बिगैन टू राइज। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमारे अर्थ पे क्या है ना, बहुत सारा माउंटेन लाइक एरियाज है, तुमने देखा होगा मैप में, हमारे हिमालयन रीजन है इंडिया में, हिमालयाज है ना, बहुत सारा क्या है, ग्लेशियर्स है, एंड चाइना के अराउंड भी बहुत सारा ठंडा ठंडा बर्फ का पत्थर है जहाँ से हवा बह रहा होता है, तो बहुत सारा हमारे यहाँ क्या है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो अभी क्या है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वो जो ग्लेशियर था वो मेल्ट होने लगा। ग्लेशियर मेल्ट होने से ग्लेशियर में जितना भी पानी था वो नीचे आने लगेगा। जब पानी नीचे आने लगेगा तो अल्टीमेटली पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का जितना भी पानी होता है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, ओशन में ड्रेन होता है, एंड क्या होगा, धीरे धीरे सी लेवल राइज होने लगेगा। ये भी तुमने पढ़ा होगा, धीरे धीरे सी लेवल राइज हो रहा है, और उसका भी कुछ 1 मिलीमीटर है, कितना मिलीमीटर से सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये लॉन्ग वेवलेंथ में हम लोग ये कह सकते हैं ना, ये इंफ्रारेड है, वैसे बाय द वे लॉन्ग वेवलेंथ मतलब इंफ्रारेड होता है, एंड हाई फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखो एक चीज़ समझना है, धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे जो मेरा माउंटेन था उससे ग्लेशियर निकलने लगा और क्या समुद्र में जाने लगा, धीरे धीरे सी लेवल क्या है वो इंक्रीज होने लगा, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सी लेवल जितने भी मेरे कोस्टल एरियाज थे, कोस्टल एरियाज मतलब जो हमारे मैप में एकदम बाहर में, मतलब समुद्र के आसपास के जितने भी एरियाज है वो सबमर्ज होने लगे। बेस्ट एग्जाम्पल द्वारकाधीश, कृष्ण भगवान के टाइम पे पूरा समुद्र के नीचे चला गया। समझ में आया ना, ये सब एग्जाम्पल्स है। तो क्या हुआ कि जितना भी सब कोस्टल एरियाज है वो सब समुद्र के अंदर जाने लगे, बिकॉज समुद्र का लेवल बढ़ने लगेगा। अब एक और चीज़ समझना, और क्या हुआ, और देखो क्या हुआ, मेजर प्रॉब्लम जो था, देयर इज अ सोसाइटी विच इज़ कॉल्ड एज IPCC सोसाइटी। दिस IPCC सोसाइटी क्या बोलता है कि
IPCC 2050 तक बोलता है जितना भी मेरा तुम्हारे लिए काम करनी है 2050 तक जितना भी कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर मैंने बताया था 6 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, 5 हो चुका है, 6वां होना भी बाकी है। ठीक है, मास एक्सटेंशन है, मेजॉरिटी उसका जो रीज़न है वो ग्लोबल वार्मिंग ही होने वाला है। क्यों होने वाला है? सपोज करो ये मैंने क्या ले लिया, प्लांट ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, प्लांट ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या होता था, सी से हवा बनता था और वो हवा क्या होता था, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वो हवा फ्लो करता था, है ना। तो इससे हम लोग क्या हवा मिलता था, ये तो कॉन्सेप्ट पता है। एयर फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, गर्म हवा ऊपर चला जाता है, क्यों? बिकॉज ठंडा हवा नीचे बैठ जाता है। तो दिस इज अ थिंग ना कि एयर जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो सी से जितना भी एयर निकला वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जैसे ही आता था और धीरे धीरे जितना भी हवा है सब कंडेंस हो जाता था और यहाँ पे क्या गिरा देता था, बारिश गिरा देता था, रेनफॉल गिरा देता था। ठीक है, अब मुझे बताओ धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा ट्रोपोस्फीयर, जहाँ पे मेरा ये तुम्हारा क्या है, लैंड है ना, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो मुझे बताओ सी का टेम्परेचर और जो तुम्हारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो टेम्परेचर है वो लगभग बराबर होने लगेगा। तो जितना भी रेनफॉल यहाँ पे बनेगा वो जितना भी वाटर इवापोरेट होकर ऊपर में जाएगा वो इधर मूव नहीं हो पाएगा और बारिश कहाँ पे हो जाएगा, सी पे ही हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो मतलब बारिश तो होगा ही नहीं। समझ में आया ये चीज़? सी लेवल बढ़ने लगेगा, सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, एक तो सी लेवल बढ़ने लगेगा, पहला ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल, क्योंकि सब समझते हैं, नोबडी अंडरस्टैंड दिस टर्म व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। सबको टर्म बता रहे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेरेस्ट्रियल और सी लेवल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जितना भी वाटर का वेपर्स था जो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ रहा था वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो रेनफॉल होगा नहीं, तो पानी यहाँ पे मिलेगा ही नहीं आदमी लोग को। तो क्या होने लगेगा, वाटर क्राइसिस होने लगेगा। बिकॉज दिस इज द थिंग, जो सी में जो तुम्हारा पानी होता है वो हाईली सलाइन होता है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये रेनफॉल से प्योरीफाई होकर जो यहाँ पे आ रहा था वो होगा नहीं, तो वाटर क्राइसिस होने लगेगा। तुमने जाना होगा खाली नाम ही कि ये ना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आने वाले टाइम पे पृथ्वी में पानी खत्म हो जाएगा, लाइक दैट थिंग, पानी खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया। वाटर क्राइसिस होने के बाद जब पानी नहीं गिरेगा तो जितना ही पेड़ पौधा को पानी नहीं मिलेगा तो फूड नहीं मिलेगा, तो क्या फूड नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, फूड क्राइसिस हो जाएगा। समझ में आ रहा? दिस इज द ग्लोबल वार्मिंग। एवरी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सबको समझना चाहिए। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हुआ, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा। एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फेनोमेना था, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फेनोमेना था, बट दैट फेनोमेना इज बीन इंड्यूस्ड बाय अस, हैज बीन इंड्यूस्ड बाय अस। समझ में आया? ग्रीन हाउस इफेक्ट is a natural phenomena, very important concept. Greenhouse effect is a natural phenomena and that natural phenomena has been induced by us. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या ग्रीन हाउस, तुम्हारे मन में पहला बात, इंसान इतना मतलब क्या बोलते हैं ये टर्म से वाकिफ हो गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा इंसान बोलेगा अरे ये तो ह्यूमन मेड है, ये तो नेचुरल हो ही नहीं सकता। बट नो, यू आर रॉन्ग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना। CO2 नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में जो शील्डिंग इफेक्ट कर रहा होता है दैट इज बेनिफिशियल, बट दिस इफेक्ट हैज बीन इंड्यूस्ड बाय अस यानी ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? तो ग्रीन हाउस गैसेज आर नॉट सो मच डेंजरस और इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन कॉज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, वो एक कहावत है ना, जब खुद के घर शीशे के होते दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते, वो इसी को देख के आया था। ठीक है, वैसे तो देखो हुआ क्या, धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा, सो नॉट बढ़ने लगेगा। बिकॉज क्यों घटने लगेगा, बिकॉज पहले क्या हो रहा था, जब हवा बन के पानी दूसरी जगह चला गया, तो जब पानी निकल गया इस समुद्र से तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था। अब समुद्र से पानी निकल नहीं पाएगा, सी लेवल बढ़ने लगेगा, तो पानी क्योंकि ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहा है तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, हमारे ओशन का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा। ओके, देखो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको हम लोग एक बार थ्योरेटिकल भी जान लेते हैं। मेन ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बता दिया है, इसमें मैंने ये लिखा है कि यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट, लेकिन इसका जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, दैट फॉर्म अ थिक लेयर अराउंड द अर्थ सरफेस एंड इट चेक्स द रेडिएशंस ऑफ द हीट।
ठीक है, चेक मतलब होता है स्टॉप करना या कंट्रोल करना। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो टेम्परेचर था अर्थ का वो इंक्रीज होने लगा, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। मुझे बताओ आज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्या ये चीज तुम्हें पहले से पता थी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में? ग्रीन हाउस गैसेस का तो पता था। मतलब दिस थिंग कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, यू हैव नॉट मतलब एम्फेसाइज सो मच ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि अगर तुम्हारे बोर्ड में आता ना तो मुझे बताओ तुम क्या लिखती ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ यू कैन राइट अ हाफ पेज पैराग्राफ ना अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एनीवेज, यू कैन ओके। तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो मैंने याद करवा दिया तुम्हें। देखो इसमें CO2 है, मीथेन है, CFC है, N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो मैंने 4 ऑप्शन दे देगा, NO2 भी दे सकता है, NO2 नहीं होगा, N2O होगा, ठीक है। आगे एक्सक्लूडिंग दिस ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो रिलीज्ड। एंड मैंने बताया था NO2 याद है, NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलीज होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एग्रीकल्चर फील्ड से रिलीज होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब इनडायरेक्टली एक फार्मर है जो अपना खेत को बचाने के लिए अगर यूरिया डाल रहा है अपने खेत में, तो ही इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस फर्टिलाइजर्स का यूज को कम करना है। समझ में आया? फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन हाउस गैस में क्या है, हम लोग क्यों बोलते हैं फर्टिलाइजर का यूज मत करो, पेस्टिसाइड का यूज मत करो, पर हमें डाउट आना चाहिए फर्टिलाइजर तो बढ़िया है ना, फर्टिलाइजर तो बढ़िया है, प्लांट को न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्यों खराब क्यों है? खराब इसी रीजन से बिकॉज इट इनहेंसेस द ग्लोबल वार्मिंग। एंड इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, जो तुम्हारा काउडंग है वो काउडंग को तुम घर में प्रिपेयर करो, उसको तुम एज ए फर्टिलाइजर यूज करो। बिकॉज काउडंग के अंदर में ना बैक्टीरियाज होते हैं, हाईली पायोजेनिक बैक्टीरियाज, नॉट पायोजेनिक, हाँ पायोजेनिक बैक्टीरिया यू कैन से, देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरियाज एंड दैट बैक्टीरिया फॉर्म द मीथेन गैस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बनाने का तरीका है, वैसे मेरे हिसाब से तो एक जिम्मेदार नागरिक को पढ़ाना ही चाहिए। तुम्हारे घर में अगर मान लो डस्टबिन है, ठीक है, ये डस्टबिन है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे घर में जितना भी भगवान को फूल वूल चढ़ता है, ठीक है, तुम एक काम करो और घर में जितना भी वेजिटेबल का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉट प्लास्टिक और ग्लासेस को इंक्लूड नहीं करना, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जिसको माइक्रो से अटैक कर सकता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तुम उसको क्या करो, भर दो, केला का छिलका हो गया, फल वूल जितना भी है, और जितना भी तुम्हारा छिलका विलका लाइक दैट, फूल जो भगवान को चढ़ाते हो सब डाल दो। इसके ऊपर तुम क्या करो, गोबर डाल दो, जो गाय का काउडंग होता है वो डाल दो। एंड इसके ऊपर तुम क्या करो, थोड़ा सा दही डाल दो, हल्का सा, ठीक है, तो दही क्या करता है, इन्हांस कर देता है चीज़ों को। इसके ऊपर तुम लेयर पे लेयर डालती जाओ, मतलब रोज हम लोग का वेस्ट जनरेट होता है और हर वेस्ट के ऊपर में तुम क्या करो, थोड़ा सा तुम उसके ऊपर में काउडंग मतलब इतना डालो कि तुम उसको ना पूरा कवर कर दो, जो तुम्हारा नीचे में जितना भी है, ठीक है। तुम इसको फिर जब पूरा भर जाए तो इसको ढक दो, फिर उसमें ना छोटा छोटा पोर्स क्रिएट कर दो साइड में इस बाल्टी में, ठीक है, ताकि ये मतलब रिस्पायर करता रहे। समझ में आया ये चीज़? ये करने से क्या होगा, इसमें भी है ना, तुम्हें ना बार बार कंटिन्यूसली इसको थोड़ा बड़ा हिलाना पड़ेगा अपने हाथों से, नहीं तो क्या होगा ना, एक जगह पड़े पड़े यहाँ पे बदबू फैलेगा। अगर तुम इसको एरेशन प्रॉपर्ली करोगी तो बदबू नहीं फैलेगा, ठीक है। एंड देन तुम क्या करो, इसको 30 दिन बाद इसका ढक्कन खोलो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, वो जो चीज़ है वो तुम्हारा क्या हो चुका है, फर्टिलाइजर बन चुका है। एंड तुम इसका इस्तेमाल अपने घर में तुलसी को जो तुम उगाती हो उसके लिए मिट्टी में तुम कर सकती हो, तुम इसका इस्तेमाल कोई भी पेड़ उगाने के लिए कर सकती हो, बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ हाईली फर्टाइल सॉइल। दिस इज अ मैकेनिज्म, मतलब कि हाउ कैन यू रिड्यूस द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का समस्या भी कम हो जाएगा इससे, और तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन, तुम एक अभी न्यू जो यूट्यूबर है ना उनका वीडियो देखना, उन्होंने ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है और यही मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया, कितना क्वांटिटी के हिसाब से किया है, ठीक है, यूट्यूबर है वो लोग। एनीवेज, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो चीज़ को देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन, यू डोंट नीड टू मतलब सी दिस वॉट एवर हैज बिन रिटन इन दिस पेज, बट you just have to listen me. In this phenomena, the cover of CO2 layer around the earth and it allow the short wavelength any higher frequency of incoming solar radiation to come in, but it does not allow the longer wavelength of outgoing heat radiation from the warm surface of earth and keep the earth warm, ठीक है। and the consequences is the increase in the global mean temperature and it is referred as global warming, ठीक है। so अब देखो एक चीज़ है, आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले लेवल ऑफ it has been observed that in the recent past, the level of CO2 in the atmosphere has increased from 280 ppm to 368 ppm from 1956 to 2002. तो you don't need to remember this data, ठीक है।
अगर यही ग्रोथ रेट को कंटिन्यू किया जाए तो CO2 में जो जितना भी अमाउंट ऑफ CO2 है वो डबल हो जाएगा 2020 तक, शायद पार भी हो चुका होगा। देखो क्या हुआ इवेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगर तुम टेम्परेचर में राइज कर देती हो, दे विल लीड टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स टू द पोलर रीजन एंड कॉन्सिक्वेंटली द फ्लड्स आने लगेंगे, बाढ़ आने लगेगा, राइज इन सी लेवल, चेंजेस इन साइकिल ऑफ रेन, रेन साइकिल क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। ऐसा ही तो होता है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, तो फसल बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। एंड आइलैंड्स में बी सबमर्ज्ड इन द सी वाटर। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दिस पैराग्राफ, एवरीथिंग, ओके। नाउ व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। देखो हुआ क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था तो प्लांट के तो मजे हो गए। प्लांट के मजे क्यों हो गए, बिकॉज प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कुछ टर्म के लिए तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया, प्लांट के मजे आ गए। इंसान तड़प रहा है लेकिन प्लांट खुश है। देखो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मना रहा है प्लांट, प्लांट ही बोल रहा है कि और खाओ मेरा, तुम लोग और बर्बाद करो मेरे को, और मेरे को सोयाबीन के लिए तुम लोग एक्सप्लॉइट करो, ओवर एक्सप्लॉइट करो। याद होगा वो बायोडाइवर्सिटी में सोयाबीन वाला, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। एनीवेज, तो इस ऐसा नहीं है कि प्लांट को नुकसान नहीं होगा, प्लांट को भी नुकसान होगा। सिर्फ प्लांट के मजे नहीं है, मजे ही तुम बोले अरे प्लांट वाह भाई तेरे तो मजे ही मजे हैं। हम लोग नहीं बोलते अपने दोस्त लोग को कि यार तेरा कुछ भी हो गया, अरे भाई मजे ही मजे तेरे। तो कुछ बोला कि भाई मैं दूसरे शहर चला गया, बोला भाई मजे ही मजे। बोले किस बात का मजा है, बोले भाई किसी का 10,000 को नौकरी लगा, तुम बोलोगे मजे ही मजे। तो वैसे तुम प्लांट को बोले तुम्हारे तो मजे ही मजे। तो प्लांट बोलेगा अरे किस बात का मजा है यार, शुरू में CO2 से क्या हुआ, CO2 बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन CO2 का बढ़ा, तो स्टोमेटा का नंबर बढ़ गया, प्लांट से बढ़ा ना, बिकॉज स्टोमेटा पार्शली ओपन होता है। जब CO2 बढ़ेगा तो उसको CO2 को घपा अपने अंदर लेगा, तो द प्लांट ट्राइज टू ओपन इस स्टोमेटा एंड स्टोमेटा का नंबर भी प्लांट क्या करेगा, बढ़ा लेगा। एंड स्टोमेटा बढ़ने से एक चीज़ होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। तो शुरू में तो बारिश भी होगा, बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ये होगा कि भैया टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर से ट्रांसपीरेशन ज़्यादा, मतलब एक लेवल पे टेम्परेचर बढ़ा रही तो ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, बट आफ्टर अ टाइम ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें ट्रांसपीरेशन चैप्टर में। एनीवेज, और एक और चीज़, प्लांट के मजे क्यों नहीं है, बिकॉज क्या हुआ, रेनफॉल होगा ही नहीं, रेनफॉल इरेगुलर होगा, इरेगुलर साइकिल ऑफ रेनफॉल। तो प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, प्लांट मर जाएगा। CO2 को लेकर हटा डालेगा, मर जाएगा, ठीक है, पानी से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ये इनिशियली हम लोग को देखे, फर्टिलाइजेशन मतलब हमने पढ़ा है कि फ्यूजन होना। तो एक्सेस CO2 क्या करेगा, अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर देगा प्लांट बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो लिख के भी रखा है, अप टू अ फ्यू ईयर्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड ये तुमसे पूछता है बोर्ड से, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। आगे देखो ग्लोबल मीन टेम्परेचर 0.6 डिग्री बढ़ चुका है इन द 20th सेंचुरी। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 0.6 डिग्री सेल्सियस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लोबल मीन टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है, और ये 2 to 3 डिग्री सेल्सियस वाला भी डेटा है। ये लाइन आएगा एज इट इज कि वो तुमसे पूछेगा लाइन सही है कि नहीं है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या लिखा है, सी लेवल जो है वो भी हर साल 1 to 2 mm क्या बढ़ रहा है। हेलो, ठीक है, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन मैंने पढ़ा दिया। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ का कितना होता, चिली -18 डिग्री सेल्सियस होता, rather than the present average of 15 डिग्री सेल्सियस। आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट, ठीक है। आगे ठीक है, लिख के रखा, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, बता दिया। 0.6 डिग्री सेल्सियस अगेन आ गया, मोस्ट ऑफ ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड्स में बढ़ा है। ये लाइन पूछते हैं, ठीक है। लास्ट के 3 डेकेड, एक डेकेड मतलब 10 साल होता है। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें लिख के रखा है लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिटेड अगेन टुवर्ड द अर्थ। देखो ये किया लेकिन वापस इधर आ गया, क्यों होगा, क्योंकि एक मोटा लेयर बन चुका है। दिख रहा है डायग्राम, एनर्जी एंट्रैपमेंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो 33 मिनट्स का ये लेक्चर था अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है। आगे we will study the ozone depletion, okay, very important again, ozone depletion. And after ozone depletion we will see कि तुम्हारा ये BOD, today we will also see BOD, biological oxygen demand, which is important. I will complete this ozone depletion। देखो ये सब एयर पॉल्यूशन के अंदर में ही है, ठीक है।
इसको वाटर पोल्यूशन मत समझ लेना, है ना, तुम समझोगे नहीं मुझको पता है, बट स्टिल दिमाग काम करना बंद करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस में था, तो एयर पोल्यूशन के अंदर में था। तो एयर पोल्यूशन से क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो सकता है। तुम मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम में आएगा ना एयर पोल्यूशन, तुम बड़ा बड़ा के लिख सकती हो, एयर पोल्यूशन हो गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग इतना सारा डेटा है, 0.6 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है टेम्परेचर, 1 to 2 mm हर साल बढ़ रहा है टेम्परेचर, -15 डिग्री सेल्सियस होता, नहीं तो 18 डिग्री सेल्सियस है, -18 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन अभी 15 डिग्री सेल्सियस है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन एयर पोल्यूशन एंड स्टिल एयर पोल्यूशन इज स्टिल रिमेनिंग, ठीक है। कंटेंट दे रहा हूँ तुमको, जो कंटेंट। आगे ओजोन डिप्रेशन हम लोग स्टडी करते हैं। ओजोन डिप्रेशन क्या होता है तुम मुझे बता सकती हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे को पता चल जाएगा तुम्हारा कितना नॉलेज है। ओजोन डिप्लेशन मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, लाइक अर्थ का एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते जाते ओजोन जो है वो बहुत कम हो रहा है, जैसे कि यूवी रेज डायरेक्ट एंटर कर क्या क्या एंटर कर रहा है, यूवी रेज जो है सन से आ रहा है, अच्छा, वो डायरेक्ट एंटर कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन, उससे हाँ हमको याद है जो फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, स्नो ब्लाइंडनेस और बहुत सारा। ओके वेल डन। सो ओजोन डिप्लेशन, इन ओजोन डिप्लेशन देखो होता क्या है, आई विल ड्रॉ, ओके, सो दिस इज आवर अर्थ, और ये अर्थ है, और ये क्या मैंने बना दिया, इक्वेटर बना दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सन भी बना दे रहा हूँ लगे हाथ, ठीक है। ये क्या हो गया, सन हो गया। सन से क्या होता है, पैरेलल रेज ऑफ रेडिएशंस आती हैं जो मेरे इक्वेटर पे स्ट्राइक करती हैं, और इधर से तुम्हारा और रेडिएशन आ रहा है जो ऑब्लिकली स्ट्राइक करती है, ठीक है। दिस इज अ मतलब इजी थिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक और चीज़ मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ द पैरेलल रेज ऑफ रेडिएशन जो ट्रॉपिकल एरियाज बन जाते हैं, हैवी रेनफॉल होता है इस एरिया में, और इस एरिया में लेस चेंज इन बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और अभी देखो एक चीज़ मैं तुम्हें इधर ये समझा रहा हूँ कि अर्थ के 16 किलोमीटर्स अबव, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, एक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद एक और लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इन बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, एक लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ लेयर, ओजोन लेयर बोलते हैं। देखो ये ओजोन लेयर जो होता है ना, सबसे ज्यादा अगर क्या बोलते हैं, ये ओजोन लेयर का क्या होता है, एक थिकनेस होता है, मोटापा होता है, ठीक है। कितना मोटा ओजोन लेयर है। तुम्हें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जितना भी अर्थ सन से जितना भी रेडिएशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं रेडिएशन ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। रेडिएशन जितना भी आ रहा है उसको मैं एच म्यू लिख सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको यूवी रेडिएशन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है ना, वो क्या करता है, वो ओजोन लेयर से टकरा के हमारे अर्थ पे नहीं आ पाता, शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है ओजोन, ठीक है। तो जितना भी अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन है वो हमारे अर्थ पे नहीं आ पाता है। बट हुआ क्या कि हमने अर्थ पे बहुत सारा केमिकल बनाया, फॉर एग्जांपल CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज के डेट में तो नहीं करते, बट पहले बहुत करते थे। इनफैक्ट जितना भी हमारा डिओड्रेंट्स होता था या जितना भी हमारा स्प्रे होता था, उनके अंदर भी CFCs का इस्तेमाल होता था। AC में जो होता है CFC का इस्तेमाल होता है। ये जो CFC होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, 12, 13, बहुत तरह का होता है, 11, 12, CFC 11, CFC 12, CFC 13। वो CFC क्या करता था, वो एकदम हवा में उड़ जाता था, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाता था, और वो क्या करता था ना, ओजोन को डिप्लीट कर देता था इनटू O2 एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। समझ में आया? इसका एक पूरा साइकिल होता है, O3 कैसे कन्वर्ट हुआ O2 में, मतलब एक पूरा मैकेनिज्म है 3-4 लाइन का, उतना हमें ध्यान नहीं देना है क्या मैकेनिज्म है। तो देखो 2 रीजन मैं ले लेता हूँ, एक रीजन मैं लेता हूँ आर्कटिक रीजन, और दूसरा मैं लेता हूँ अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। 1985 में सबसे पहले देखा गया था अंटार्कटिक रीजन पे कि ओजोन का क्या हो चुका है, लेयर डिप्लीट हो चुका है, मतलब इस लेयर में छेद हो चुका है, ओजोन होल बोलते हैं। ये लेयर में छेद होने से क्या हुआ, जो रेडिएशन है वो हमारे अर्थ के अंदर में एंटर कर गई और कैंसर का रिस्क बढ़ गया। ओजोन डिप्लेशन होता है कि थिकनेस का कम हो जाना और छेद हो जाना, ठीक है। तो ये क्यों देखा गया, बिकॉज एक सैटेलाइट थी, क्योंकि उस समय तो है ना हमारा अर्थ बहुत डेवलप कर रहा था ना, तो बहुत सारा सैटेलाइट हमारे अर्थ पे क्या बोलते हैं बन रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार था 19th सेंचुरी में। निम्बस सैटेलाइट था, NIMBUS, निम्बस सैटेलाइट था। उसने क्या किया, 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका पे एक होल देखा, उसको क्या नाम दे दिया, ओजोन होल, ठीक है। ओके,
तो इधर एक चीज़ ध्यान में देने का है कि 50 किलोमीटर तुम्हारा क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और 16 किलोमीटर पे क्या होता है ट्रोपोस्फेयर होता है। कोई पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही ध्यान में रख लो। और क्या, एक और चीज़ समझना, ये जो सब्सटेंस था मैंने क्या बोला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था वो क्या करता है, ओजोन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। ओजोन का प्रॉपर्टी खत्म, तो ओजोन जब प्रॉपर्टी खत्म तो डिप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे CFCs एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे क्या कर देगा, ओजोन को खत्म कर देगा। ओजोन जब खत्म हो गया तो आराम से रेडिएशन अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो मेन ओडीएस मतलब होता है ऑक्सीजन ओजोन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो मेन है उनमें एग्जांपल है CFCs, N2O एंड मीथेन। ठीक है, इन CFCs को हम क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स बोलते हैं, FREONS, फ्रियॉन्स CFCs हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या बनाया था मैंने, 60% मैंने CO2 बनाया था। ठीक है, एंड आफ्टर CO2 मैंने क्या बनाया था, मीथेन बनाया था, एंड आफ्टर मीथेन मैंने क्या बनाया था, CFC बनाया था। और देखो एक चीज़ समझना और भी तरीका, CCC जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उसमें CCC कंटिन्यूस था, लास्ट में क्या आया था, N2O आया था, अगर याद नहीं रहे तो CCC कंटिन्यूस था, लास्ट में क्या आया था, N2O आया था। ठीक है, इधर क्या करना है तुम्हें, CFC फिर N2O फिर मीथेन, तो ऐसे याद नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का याद कर लो। इसका याद करने का तरीका क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, तुमको अपने आप से पूछना है एग्जाम हॉल में, तुम्हें अपना कॉमन सेंस लगाना है, याद नहीं करना। तुमको कॉमन सेंस अपने आप से पूछना है कि यार ये जो ऑक्सीजन डिप्लीट, जो ओजोन डिप्लीट हो रहा था किस लिए हो रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तुम्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को देनी है, समझ में आया। एंड उसके बाद तुम्हें रेस्पेक्टिवली प्रायोरिटी देनी है। अब दो ऑप्शन में तुम्हें कंफ्यूजन होगा, N2O करूँ कि CH4 करूँ, तो तुम अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉमन सेंस लगाना कि वहाँ पे भी CFC पहले था और N2O बाद में था, तो यहाँ पे भी CFC पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, साइमल्टेनियसली जो कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड्स है बिटवीन CFC, मतलब से कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन है बिटवीन CFC एंड N2O, CFC के बाद कौन आएगा, N2O, एंड आफ्टर N2O यू कैन मार्क CH4, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन गैस जो एग्रीकल्चरल फील्ड में इनफैक्ट मार्शी एरियाज में प्रोड्यूस हो रहा था, वो ओजोन डिप्लीशन भी कर रहा होता है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहा होता है। ये एक बायो गैस है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, इसका प्रॉपर बर्न, ये प्रॉपर बर्न होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन इसका होना चाहिए। ओके, देखो एक्चुअली होता है क्या ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है वन क्लोरीन एटम, क्लोरीन का, क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, मैंने फ्लोरो लिखाया बट ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, कार्बन भी है। तो एक क्लोरीन का एटम जो होता है 1 लाख ऑक्सीजन ओजोन के एटम्स को क्या कर देता है, डिप्लीट कर देता है। समझ में आया, मतलब एक ये साइक्लिकल होता है, ये जो पूरा प्रोसेस, मतलब एक समझ करो, सपोज करो एक क्लोरीन का एटम आया, वो एक क्लोरीन का एटम एक मतलब वो जहाँ पे भी जाएगा पूरे संघ को बर्बाद कर देगा, एक गंदी मछली पूरे नदी को बर्बाद कर देती है, वैसे ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा, एक क्लोरीन का एटम तुम्हारे 1 लाख ऑक्सीजन के एटम को बर्बाद कर देगा, सिर्फ एक एटम। ये इतना बड़ा साइकिल चलता है बिकॉज एक क्लोरीन क्या करता है, सबसे पहले एक ओजोन को तबाह करेगा, ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है दूसरे के पास जाएगा और दूसरे को तबाह कर देगा। तो लाइक दैट एक सीक्वेंस साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, ओके, तो देखो एक चीज़ समझना है तुम्हें, सबसे पहले अंटार्कटिका में तुम्हें ये ओजोन डिप्रेशन मिला, क्यों मिला, बिकॉज अंटार्कटिका का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू आर्कटिक रीजन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पे ठंडा एटमॉस्फेयर होता है। तो जितना भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे अर्थ से रिलीज हुआ वो कहाँ पे चला गया, अंटार्कटिका रीजन में चला गया। सबसे पहले इसलिए कहाँ पे कर दिया, अंटार्कटिका में कर दिया। ठीक है, अच्छा आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह जो रेफ्रिजरेटर है उसमें इस्तेमाल करते हैं BRFC मतलब ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, लेकिन ये जो क्लोरो की जगह ब्रोमो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैलोन्स बोलते हैं इनको। लेकिन अब देखो ये ना, इनका ऑक्सीजन डिप्लेटिंग पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल है इनका ओजोन को डिप्लीट करने का, ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू CFCs और द फ्रियॉन्स। तुम्हारे मन में आएगा जब इनका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल कई लाख मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है ओजोन का, तब इनको क्यों इस्तेमाल किया गया, बिकॉज हम लोग जो हमारा पृथ्वी है या हमारा जितना भी अप्लायंसेस है उनमें BRFC का अमाउंट हमें बहुत कम चाहिए इन कंपैरिजन टू CFC, इसीलिए BRFC का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। समझ में आ गया ये चीज़, क्या ओजोन डिप्लेशन क्लियर है? ओके, वी विल सी ओजोन डिप्रेशन। देखो क्या लिखा, ऑक्सीजन इन प्रेजेंट, देखो ओजोन जो होता है ना
ये हमारे एटमॉस्फेयर में कम क्वांटिटी में सबसे पहला ही लाइन जो है तुम्हें फंसा देगा। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में कम क्वांटिटी में थोड़ी है, पूरा लेयर बना हुआ है। अरे ये एटमॉस्फेयर का बात बोल रहा है, ये स्ट्रेटोस्फेयर का नहीं बोल रहा। हमारे एटमॉस्फेयर में तो नहीं होता, ये ना के बरोबर है, जो है वो टॉक्सिक है, ठीक है। इसीलिए इज लेस क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर, इट इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वेयर द एग्जामिनर मे ट्रैप यू आफ्टर दिस। लेकिन 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है ओजोन का वो मैक्सिमम होता है। 16 किलोमीटर मतलब ट्रोपोस्फीयर से लेके स्ट्रेटोस्फीयर तुम्हारा 50 किलोमीटर तक हो जाता है, मतलब बीच में मैंने बताया था तुम्हें ओजोन का क्या होता है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो ओजोन का थिकनेस होता है 3 mm होता है, मेरे को नहीं लगा तुम्हें याद करना है। पोल्स पे थिकनेस ज़्यादा हो जाता है, जो तुम्हारा पोल्स है यहाँ पे 4 mm का थिकनेस हो जाता है, यहाँ पे 4 mm का, और यहाँ पे 3 mm का थिकनेस होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सन का रेडिएशन जो है ना वो पैरेलल है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म कर देता है, तो वहाँ पे उसलिए पतला होता है। निम्बस 7 सैटेलाइट है 1995 पर अंटार्कटिका पे देखा, मैंने बता दिया है चीज़, ठीक है। ड्यू टू डिप्लीट, और ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा, उससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगी, वो क्या करेंगे, स्किन का कैंसर कर देंगी। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन डीएनए और म्यूटेशन कर देता है, बताया था। स्नो ब्लाइंडनेस बताया था, कैटरैक्ट बताया था, सब बताया हुआ है मेरा, ठीक है। आफ्टर दिस एरोसोल्स लाइक क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेटर से होता है, एयर कंडीशनर से होता है, जेट प्लेन जो प्लेन उड़ते हैं उनमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ा हुआ होता है। देखो कैसे कन्वर्ट कर दिया O2 प्लस O में, ठीक है। थिन लेयर, उसको हम लोग क्या, ओजोन होल्स क्या होता है, व्हाट इज ओजोन होल। ओजोन होल जो होता है ना वो ओजोन का थिकनेस को बोलते हैं। होल मतलब ऐसा नहीं कि छेद हो गया है, थिन हो गया। देखो कंपैरेटिवली ये इतना मोटा था, ठीक है, ये जो ओजोन मैं बना रहा हूँ देखना, इतना मोटा बना रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इतना पतला हो गया, ओजोन बहुत पतला हो गया, होल नहीं हुआ है। तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो होल हो चुका है, पर होल नहीं हुआ, इधर क्या हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ये एरिया, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्या बोला कि ये एरिया जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, क्लियर है, होल नहीं हुआ। थिननेस ऑफ ओजोन लेयर, जो थिननेस है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं, ओके। डॉप्सन यूनिट, यस, ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो किस में मेजर्ड होता है, डॉप्सन यूनिट में मेजर्ड होता है। जस्ट लाइक कि तुम यहाँ से किलोमीटर्स में जैसे मेजर करती हो, मतलब मीटर्स या किलोमीटर्स में लेंथ को मेजर करती हो, वैसे ही ओजोन का जो थिकनेस होता है ना वो मीटर या किलोमीटर में मेजर नहीं करते हैं। क्योंकि तुम खुद बताओ, तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे यार मैं तो है ना एक बार रॉकेट लेके ऊपर जा रही थी, 16 किलोमीटर के बाद ओजोन मिला, ओजोन इतनी मोटी थी, 1 किलोमीटर मोटी थी, ऐसे थोड़ी बोलोगी। तुम बोलोगी यार उधर है ना वो कन्वर्ट करोगे तुम उसको यूनिट में, एंड देन यू विल से कि डॉप्सन इतना 5 डॉप्सन यूनिट का थिकनेस था, ठीक है। देखो द ओजोन होल जो होता है अंटार्कटिका के ऊपर में हर साल के साल डेवलप कर रहा है, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, ये तुम्हारा ऑटम होता है, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर में ओजोन होल डेवलप कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे, कब करता है, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। वैसे बाय द वे मेरा बर्थडे अगस्त में ही आता है, तो लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, देखो मेरा बर्थडे खलनायक है पृथ्वी के लिए, मेरे बर्थडे के टाइम पे ये सब होता है। सो इधर हम लोग का कंप्लीट होता है ओजोन एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, एंड दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन में स्टिल कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम जो चैप्टर का जो हमारा जो वो है ना फ्लो जो है, या हमारा जो चैनल है, चैनल नहीं बोलेंगे, हमारा जो चैप्टर को ख़त्म करना है, हम लोग जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पहले पढ़ाते हैं या पहले पढ़ते हैं, और जितना लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो ये जो है ना ये कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक चल रहा है, ठीक है। एयर पोल्यूशन में कुछ पोर्शन अभी भी बाकी है।